stage of our life between 10 years and 19 years. That in that situation we have to mold ourselves in such a way so as to enjoy our life in a full and the full gloom. Give a big hand for son. Yes, it is very important phase of human life. स्वाभाविक है बच्चा शुरू से जन्म लेता है, वो बाल्यावस्था से, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आता है, उसके बाद एडल्ट होता है, देन उसके एज क्रॉस करते जाते हैं, एट लास्ट वो ओल्ड भी हो जाता है. शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में लिखा है, उसी से एक पोएम दिया गया है, 7 ages. Human life is divided into 7 ages. William Shakespeare, he was great English, yes, scholar and great dramatist of his time. No one could compete him till today. Just like हमारे देश में प्रेमचंद. तो फिलहाल उन्होंने जो बताया, बच्चा शुरू से जन्म लेता है, 2-3 साल 4 साल हो जाता है और उसको स्कूल जाना पड़ता है और वो स्नेल की तरह, जो गांव में घोंगा जिसको बोलते हैं, उस स्नेल की तरह जाता है, बस पीठ पे बैग होल्ड रख करके जाता है और अनविलिंगली वो जाता है. धीरे धीरे उसके एज बढ़ते जाते हैं. फ्रॉम दिस साइड अबाउट एडोलसेंस, कोई व्हाट इज एडोलसेंस? आप सर यस उसके बारे में you would say something? Just you talked about adolescence and the poetry delivered by Shakespeare about 7 ages. When a person is born as a baby, he is crying and poking in the hands of nurses in the hospital, or unwillingly he goes to his school with his backpack on his back. Then after he is seen to be as a student, as a boy. Then he is known to be as a soldier. He plays the role of a soldier. Right now we are playing the role of a judge. Right? Is it right? Yes. That Absolutely right. all of us are playing the role of a judge. We have to mold ourselves. We have to create something in our mind, something positive that would give us all the potential to mature ourselves to touch a new high in the world. And that's why today we are here to make such a leader, such a soldier who could lead our country, who could lead the world. So adolescence is a phase of life. In another word, we can say it is a bridge between childhood and adulthood. ये ब्रिज होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, और पूरी लाइफ का निर्माण इसी फेज में हो जाता है. बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे. कुछ और एडोलसेंस के बारे में जानकारी दे देते हैं. सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए एडोलसेंस के बारे में. When you were adolescent, what was your condition? What was, if you have done any activities? Today you have to say. जो हमारा बेसिक वर्क था वहाँ से माइंड डाइवर्ट होते थे और जो अच्छी बातें टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए बताते थे, वो उस समय ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था. Changing in mood, mental condition. Yes sir. Nice. Clapping for sir. Sir, IT sir, आप अपने बारे में कुछ बताइए. जब आप युवा थे, I will also share my experience, of course. When we started to grow in the earliest, in the sense of adolescence age, then a lot of variety types of changes of us started to occur in our body. Some are physical and some are mental, which is mental changes is very problem. Okay. It creates a lot of problems. It divert our minds. When we started reading, then it's
थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए ताली हो जाए। फ्रॉम दिस साइड एडोलसेंस के बारे में कुछ आप बताएंगे? नो मैम, यू प्लीज। आप यस, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नाइस। Nice man, nice. A big clap for man. Of course, in adolescence is the one of the biggest problem is that swing of mood. Of course, मन बड़ा चंचल होता है उस दौरान, क्या करें क्या ना करें, ये कंडीशन बड़ा जानलेवा होता है, क्रिटिकल होता है। What do, what not to do? I am just going to share my views. जब मैं 10 साल का था, पिताजी कहते थे, कुछ समझाते थे, तो समझ में आता था कि really he is very knowledgeable person. He has a lots of experience, and whatever he tells me, whatever he suggests me, I will certainly follow in my life. When I enter in adolescence age, it means like 10 to 19 years old, I understand myself that no, he is zero, he has nothing knowledge. I am the best and I know everything. I can do whatever I want. लेकिन जैसे 19 क्रॉस किया, मुझे समझ में नहीं। Whatever he was telling me, which all was based on his experience. ये पूरा का पूरा उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड, उनका एक्सपीरियंस था जो हमें शेयर करते थे। उस समय समझ में नहीं आता है, उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है। राइट नाउ सर ने बताया कि वी आर इन द कंडीशन ऑफ जज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। लेकिन वो जो एज हो जाता है, उसके दौरान समझ में नहीं आता है, अकेलापन रहने का मन करता है, और शेर शायरी में इमेजिनरी वर्ल्ड में इंसान ज्यादा घूमते रहता है। सर आप बताइए। एडोलसेंस के बारे में मैं इंक्वायरी करना चाहूंगा। एक वर्ड आप सब सुनते होंगे, टीनेजर्स। जो ये टीनेजर्स शब्द है बहुत ही एडोलसेंस के लिए घातक है। जैसे आप 13 देखते हैं, 13 बोलते हैं, 13 के लास्ट में क्या आता है सर? 3 आता है। 14 के लास्ट में क्या आता है? इसी प्रकार हम लोग 90 तक पहुंचते हैं, सब के लास्ट में क्या आ रहा है सर? 3 आ रहा है। तो ये जो टीन है, टीनेजर्स है, दैट मींस किशोरावस्था, दैट इज योर एज ऑफ एडोलसेंस। और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मानसिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। मन में विभिन्न प्रकार की भावना क्रिएट होती है, वो भावना पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें ये जज करना है कि हमको किस राह पर चलना है। इसीलिए इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था से भी जाना जाता है, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Is here a bio teacher, science teacher? Yes, you ma'am. Okay. From which class you take? 8 to 10. So I think in class 8 there is a chapter named adolescence. Do you teach clearly everything? Do you explain everything? Of course, this should be in our class. होना चाहिए, जरूरी है। जनरली क्या करते हैं ना, बच्चे पूछते हैं, ओके मैम, यू कैन सी, थैंक यू। जनरली क्या होता है ना, बच्चे हमसे पूछते हैं, अरे तुम्हारी उम्र नहीं हुई अभी, थोड़ा बड़ा हो जाओ तो कुछ जाना। और ये चीज उनके माइंड के लिए काफी हिंड्रेंस है।
वो उनके माइंड में नासूर की तरह काम करता है। And that activity, that answer really can deviate him from the right path. उनको सही रास्ते से उनको भटका देता है। तो being a guardian, being a teacher, हमें इस चीज को बताना होगा, समझाना होगा क्लियरली। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, स्टाइल अलग हो सकता है, वल्गैरिटी भी नहीं लानी है, नहीं तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, लेकिन उनको नॉलेज देना है, उनको जानकारी देनी। अभी खास करके सभी लोग पेरेंट्स भी होंगे और खुशनसीबी की बात है कि टीचर भी हैं, तो दोनों जगह मौका मिलता है। बिकॉज स्टूडेंट्स स्पेंड देयर लाइफ द स्पैन ऑफ 1 डे 8 आवर्स अमंग अस। हम लोग के साथ वो ऑलमोस्ट 8 आवर्स 7 आवर्स सबका अलग शेड्यूल होता है, वो बिताते हैं। तो उनको सही ढंग से नर्चर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बीइंग अ टीचर। घर पे भी तो होता ही है, घर पे भी माँ बाप को निश्चित रूप से बच्चों से ओपन होने की आवश्यकता है। कई तरह के प्रॉब्लम आज सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं। जनरली वो एडोलेसेंस में एज में आ जाते हैं और उनमें जो बदलाव होने रहता है वो अंदर ही अंदर उन चीजों को सहते रहते हैं, घुटन करते रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू शेयर दिस थिंग विद अदर्स। लोग क्या कहेंगे, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन वहां पे ओपन होने की आवश्यकता है। इतना भी ओपन भी नहीं होना है, लेकिन हाँ एक लिमिटेशन को जरूर फॉलो करना है। एनएपी बताता है कि वी आर टीचर्स, वी हैव टू वर्क विद देम एज अ फ्रेंड, नॉट बिकमिंग अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड उनको बिहेव करना है उनके साथ हम लोगों को। एज अ फैसिलिटेटर, हम लोग फैसिलिटेटर भी हैं, उसके लिए फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, लेकिन फ्रेंड बन के नहीं। इतना भी ना कि बस वो गड़बड़ हो जाए। दूसरी बात, उनको प्यार देना है, लेकिन नॉट एज अ लवर, लवर के रूप में नहीं। उनको समझाना है व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली नहीं समझ पाते हैं ना वो, उस एज में आते वो नहीं क्लियर कर पाते हैं चीज को। तो उन्हें समझाना है कि कोई तुमको छूता है, क्या इंटेंशन है, तुमको इस बात को समझना होगा, ये बताना होगा। हमारे घर में हमारी अपनी भी भतीजी है, इस चीज को बताते हैं, हम समझाते हैं कि कोई भी ऐसा हो ऑकर हो, इतना कुछ फ्रैंक रहिए कि भाई कुछ भी हो रहा है वो जरूर आके आपको शेयर करें, बताए। क्योंकि वो एडोलेसेंस एज में है, वो नेगेटिव ले सकती है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड का केस एडोलेसेंस एज का है। वो उस प्रेशर को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए टुडे भी आए हैं, आज हम लोग हैं। इस चीज को समझना है। अकॉर्डिंग टू एनसीए 2005 नेशनल फ्रेमवर्क curriculum 2005 has made a compulsory to put out it in our syllabus that every students, either girls or boys, have to teach about the adolescence, and it was implemented in 2010। ये लागू हो गया and right now अभी हमारे कंट्री में ये लागू है, चल रहा है। इसको एक सब्जेक्ट बना दिया है, सब्जेक्ट के रूप में हम टीचर्स को बताया जा रहा है और हम उस चीज को ट्रीट कर रहे हैं बच्चों के साथ। करना है, समझना है। पहले नहीं होता था, ये ट्रेनिंग वाली बात पहले नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर 2022 which we can also say it was necessary कि पहले ट्रेन होना है, ऑलरेडी मैं इसी को कह चुका हूं, and then we have to give the training to our students also, समझाना है, because 22% of the population today right now is of adolescents. In near time, आने वाले समय में वो देश के कर्णधार हैं। तो आज हमको बिल्डअप करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी वो हमारे कंट्री को लीड कर पाएंगे। Otherwise, it is not possible. Are you agree with me? And that's why we are here. हम इस बात को समझना है। They will be the working capital of our country. So mentally, physically, emotionally, we all, it's our responsibility. We all have to make him strong. We all have to make them strong.
ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रॉम द बैक साइड, चलिए मेंटली जो चेंजिंग होता है उसके बारे में मैं कुछ पूछूंगा। एक्चुअली जब मैं आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि चेहरे पे थोड़ी सी सिकन आ रही, नहीं, हम लोग को ये चीज नहीं समझना है। वी हैव नॉट टू टेक दिस सेशन एज अ स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस लेकर नहीं चलना है, जस्ट फॉर गेनिंग नॉलेज। लग रहा है सबके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी ये आ गई है, तो हम एक वार्म अप एक्टिविटी करेंगे। वार्म अप एक्टिविटी ये होगा, यू ऑल हैव टू डू व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डायरेक्ट यू। हम सभी को ताली बजानी है, लेकिन स्टाइल कुछ अलग होगा। स्टाइल ये होगा कि मैं जब 1 बोलूंगा आपको 3 टाइम क्लैपिंग करना है। 1 बोलूंगा तो 3 टाइम यस 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 सर, 3 टाइम क्लैपिंग करना है। 2 बोलूं तो 2 टाइम्स, और 3 बोलूं तो 1 टाइम। थोड़ा सा एनर्जी लाना जरूरी है। देख रहे हैं एकदम भाई, I can also understand your feelings. You are giving your precious time today because it is your it is not counted in your working day. I understand this. लेकिन it is compulsory. जरूरी है. We all have to follow the norms of cities. समझना है, जहाँ से सीखे हैं उसका तो करना जरूरी है ना. Okay, so we will start the warm up activity. Are you ready? Yes. Okay. 1 इनकम में होनी चाहिए। 2 इधर से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। 3 1 2 थोड़ा बहुत अच्छे से 3 1 second 2 in 2 you have to clap 2 times 3 just 1 time in 3 1 time you have to clap 1 time 2 1 गुरु के समय में साउंड गाइड क्लैपिंग हुआ करता था 1 2 1 2 3 1 2 थोड़ा सा बदला हुआ फॉर्म है। बस अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर कर लेना है, अपने एडोलसेंस को रिमेंबर कर लेना है कि कौन कौन सा एक्टिविटी हम उसमें क्या करते थे। तो इस एक्टिविटी के द्वारा मैं इसी चीज को रिमाइंड कराना चाहूंगा। 3 में 1 टाइम बजाना 1 2 3 तो बात हो रही थी एडोलसेंस एजुकेशन की बात हो रही है। हर लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं, हम सभी इस दौर से गुजर कर क्या गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसके बारे में बहुत हर तरह के चेंजिंग होते हैं। मेंटल चेंजिंग जो होता है अगर उसके बारे में हम बात करें, क्या मेंटल अब सर इंग्लिश ने लैंग्वेज की ये जो फाउंडेशन थी ना उसको खत्म कर दिया है। बाइलिंगुअल, यस वी कैन टीच बाइलिंगुअली इन इवन आवर क्लासेस। तो सर जिसमें आपको कंफर्ट हो। मोबाइल यूज कर लिए बैठे हैं क्या कर रहे हैं काफी ज्यादा होती है और जब तक ये क्यूरियोसिटी को कोई सही तरह से समाधान नहीं है
ये जिज्ञासा बढ़ती है। हो गया, ठीक है। BMW ना ये जो आयु सही तरीके से हाँ बस big hand for sir. मेंटल कंडीशन के बारे में सर ने बताया कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ. It means that in adolescence age, children just try to seek their identity. Am I right, sir? Identity means that मेरा क्या नाम है? नाम तो पता है, but what is my existence and which direction I am going? किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उनको खोजने की आवश्यकता होती है. रातों को जगना, सर ने एक बात बोली, रातों को जगना, रात भर जगे रह जाना, ये बस उसी का इफेक्ट है. और भी बहुत सारे होते हैं, कई सारे फेजेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सर नहीं हम टॉपिक पे आते हैं, एडोलेसेंस के बारे में समझते हैं. एडोलेसेंस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. प्री एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस एंड पोस्ट एडोलेसेंस. WHO ने बताया है कि 10 to 19 ये जो एज ग्रुप है 10 to 19
ये एडोलसेंस का एज, जिसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए, कई तरह के साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आज का समय जो भी है हम लोग का, वो टीचिंग मेथड जो नॉर्मल नहीं है, इट शुड बी इन द वे ऑफ पेडागोजी, ये पेडागोजिकल होना चाहिए। हम लोग को उस पे आधारित हम लोग को समझना है, पहले बच्चों को समझना है कि व्हाट दे आर नीड, उनको क्या आवश्यकता है, किन चीजों को उनको आवश्यकता है, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुडे इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, बच्चों के साथ चलना है। तो उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि एडोलसेंस के टाइप के बारे में, उसको डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्री एडोलसेंस इज 10 to 12, 10 to 12 प्री एडोलसेंस है। इसमें भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट 13 to 16 मिडिल एडोलसेंस का टाइम है। इसमें भी कई तरह के चेंजिंग होते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। इसमें एक स्टोरी में द डायरी ऑफ एन फ्रेंड, क्लास 10, उसमें एन फ्रेंड जो कि एक जीव रहती है और वो डिस्क्राइब करती है अपने बारे में, कभी समय के लाइफ में उस चीज को डिस्क्राइब करती है, बताती है कि वो जो एज उनका था उसके दौरान उन्होंने क्या फील किया। उन्होंने किसी फ्रेंड को नहीं बनाया, किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया। जनरली इस एज का क्या ट्रेट्स है, क्या लक्षण है उसके बारे में बताना। Because there were all the people around her who did not try to understand or who could not be expected to understand what she was writing, because nobody could aware, nobody could get interested in what she was telling at the age she was in. Of course, sir. Nice. Because she did not make a new friend, and that's why she started writing diary. Or it is also one of the traits of adolescence. डायरी लिखना, शायरी लिखना, गजलें लिखना, और वो जो दीवानगी जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं ना, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी, उसमें घूमना बड़ा अच्छा लगता है। और उस दौरान यदि गार्जियन समझा दे, कुछ बोल दे, तो गुस्सा सातवें आसमान पे जाता है। कभी घर में आप लोग ऐसा फील किए हैं, यदि इस तरह की बातें होती होंगी क्लास में, भी क्लास में, घर में नहीं कोई बात नहीं, क्लास में ऐसा महसूस होता होगा कि बच्चों को थोड़ा सा टाइट बोल दिया जाए, सिट डाउन, वो तुरंत खड़ा हो जाता है, रिजिड हो जाता है। हाँ, अभी कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा है। अभी आपने मेरे को बोला चलिए बात, चलिए मैं आपको देता हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं होना है, इस सिस्टम को भी देखना भाई, सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन है। तो ये उसके एज का प्रॉब्लम है, उसके मेंटल कंडीशन में चेंजिंग हो रहा है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। ये उसकी गलती नहीं है, वो भी जब उस टीनेज को, उस एडोलसेंस एज को क्रॉस करेगा, उसे भी इस बात का एहसास होगा। जनरली क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बहुत समझदार होते हैं, आगे बैठते हैं, पूरा जो कुछ भी बताएंगे बहुत इजीली में उसको ग्रैब कर लेते हैं। जो मिडिल वाले, जो एवरेज होते हैं, उनका भी अच्छा खासा है। जो बैक बेंचर्स होते हैं, बस उनकी ज्यादा एक्टिविटी होती है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एनईपी ये कहता है, ये बताता है कि हमें उन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फीलिंग ज्यादा उनके अंदर होती है, एडोलसेंस की फीलिंग सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर, सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर होती है। एक दूसरे को टीच करना, एक दूसरे को गेज करना, गेजिंग, attracting also sir, energy के लिए दूसरे जगह, yes, and also attracting, of course, this is the attraction of opposite sex also, in another word we can say। तो हमें उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसलिए बिकॉज कलाम ने कहा है the best mind of India always lies, always sits from the back bench। He was himself also a backbencher, और वो भारत के मिसाइल मैन बन गए।
तो हमें उनको समझने की आवश्यकता है, व्हाट आर देयर नीड्स। आज हम यहाँ पर बैठे हैं इसी चीज को समझने के लिए। मैं शुरू में ही बोला था इस 5 घंटे के सेशन में यदि 1 घंटा भी आप ले लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लास में, तो आज का ट्रेनिंग तो उस एडोलेसेंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उनमें बदलाव होता है। नेक्स्ट जो है 17 to 19, 20 तक भी मान सकते हैं, वो जो पोस्ट होता है जो फुली मैच्योर्ड हो जाते हैं, जिसको पुबर्टी भी कहते हैं। पुबर्टी एज बोलते हैं। उस दौरान कई तरह के डेवलपमेंट हो जाते हैं। फिजिकल चेंजेस, इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। तो जनरली उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उस एडोलेसेंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग दिस एंड व्हाई देयर इज स्पेशली चेंजिंग, द चेंज इज ऑकरिंग इन माय बॉडी, व्हाई। तो वहां पे जो भी टीचर है वहां पे इस चीज को समझने की आवश्यकता है। Am I audible from here? तो एडोलेसेंस में ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि दिस हैपेंस विद एवरीवन। इस एज में जो लोग भी होते हैं उनके साथ ये होता है, और वो उस चेंजिंग से घबराना नहीं है, उन्हें बताना है। वो जो हालांकि अभी तो लास्ट जिसको एमसी के नाम से हम लोग जानते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। इस चीज को बताने की आवश्यकता है, जिसमें देने की आवश्यकता है। जनरली चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, जो कुछ भी जो चेंजिंग हो रहे हैं उसके कारण उनका माइंड डेवलप होता है और वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ मेंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वी शुड कन्विंस इट। उनके नेगेटिव थिंकिंग को हमें पॉजिटिव की तरफ लाना है, उनको बताना है। जैसे कि सुसाइड के बारे में मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसके बाद उनके अंदर जुवेनाइल एक्टिविटी का ट्रेस भी देखा जा सकता है। तो अपराधी जिसको हम बोलते हैं वो क्रिमिनल टाइप के हो जाते हैं। क्या होता है ना, जब उनका माइंड सही जगह पे नहीं जाता है ना तो वो गलत। आप देखते होंगे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं, टेररिस्ट वो खास करके 10 to 20 तक के बच्चे का ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं वो, और उस एनर्जी का वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बीइंग अ टीचर, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू यूटिलाइज देयर एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस स्लाइड्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बॉडी इमेज जिसके बारे में मैंने अभी बताया, here is some points about adolescence. The point number 1, adolescents generally find it difficult to perceive and understand emotions as they are more impulsive and have less self control. Impulsive जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की है, तुरंत जवाब देते हैं क्लास में। कोई बच्चा को किसी को बोल दिया गया, मैं रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में बता रहा हूँ। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, पीछे से किसी बच्चे ने आवाज लगाई, सर सर, 2-3 बार बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। हर टाइम इतना जोर से बोला वो, सर आपको सुनाई नहीं दे रहा है। I was shocked at the time why he used this behavior.
ऐसा उसने क्यों किया? कोई बताएगा मुझे? टेंशन नहीं मिल रही। अटेंशन नहीं मिल रही थी। और ये जो है ना रिपल्सिव, कुछ पूछिए रिपल्सिव वे में आपका आंसर देंगे, आपको आंसर देंगे। नेगेटिव वे में आपको आंसर देंगे। मूड ठीक होगा तो सही बोलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये रिपल्सिव काइंड जो है, एटीट्यूड जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये एडोलसेंस का है। नेक्स्ट, एडोलसेंस नीड सम टू मेक डिसीजन फॉर देम ऑल द टाइम। उनको क्या आवश्यकता होती है? वी आर अ गाइडर, वी आर अ टीचर, वी आर पेरेंट्स आल्सो, सो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गाइड देम। मैंने कहा ना कि उनके एनर्जी को प्रॉपर वे में लाना है, प्रॉपर डायरेक्शन में लाना है, काफी जरूरी है। Adolescents only listen to their friends. हाँ, डायरेक्ट बात हो रही थी, अन्य फ्रेंड की बात हो रही थी। उसने कहा कि भाई मुझे किसी फ्रेंड को बनाना नहीं, इसलिए उसने क्या किया? पूरे कागज पे, पेपर पे, व्हाइट पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। Because according to another friend, the paper has more patience than human being. It is also right. हम लोग कुछ भी लिखते हैं पेपर में बना रहता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है, किसी को बताता नहीं। आपके जो भी सीक्रेट्स हैं उसको वो हाइड करके रखता है। एंड दैट्स व्हाई मेरे फ्रेंड ने डायरी राइटिंग शुरू कर दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडोलसेंट्स ऑलरेडी लिसन टू देयर फ्रेंड्स, अपनी बातों को वो फ्रेंड से शेयर करते हैं। फ्रेंड्स अच्छा रहा तो सही सब डायरेक्शन में अच्छा जा रहा है, और फ्रेंड जो है यूटिलाइज करने वाला रहा तो डिमोटिवेट कर सकता है। So in the beginning of this session, I have already told you that we also have to act like a friend with our students. Are you agree with me? चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, क्या इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए इसका। मैम यू प्लीज, कैसे उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए? बात। नाइस, यो है। प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जहाँ तक होगा उनको समझाएंगे कि मतलब क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये अभी क्या पढ़ना है? यो how will you control the emotion of adolescent? You are a student. गलत इस्तेमाल। लेकिन इसमें फ्रैंक होना चाहिए कि वो अपना कोई भी है जो बात को शेयर करता है, और हम उसका अगर हमसे वो हो पाए तो हम हेल्प करें। Solution. Sir, you can describe it nicely. There are a lot of things that can be said about the students that we teach in our class, because students are of many types, many kinds, and they are full of energy. They are completely freshers. They are adamant to do anything they can, but the teachers are interested in their task, or we are accountable to make them understand the things that what is right, what is wrong. We have to teach them something, putting the stories written by some greatest brilliant persons in the world. Sometimes we have to say some jokes to get them pleased, so that they can involve what we are. Just we have to do is to make everything clear to them, so that they start getting interested in what you are trying to explain to them about some topics. Topics need to be made easier and easier, so that they can be interested for the Nice. Give a big hand for sir. बहुत अच्छी तरह हमने समझाया। उसे टॉक करेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी इमोशन को समझेंगे। और एक सबसे बड़ी बात,
जो भी हमारे लिए पॉसिबल है, चाहे वो जोक हो, चाहे वो जो भी कंटेंट हो, उसको दे करके, उसको बता करके उसके माइंड को डेविएट करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर आप सबसे पहले सर ऐसे जो बच्चे हैं क्लास में पाए जाते हैं, उनका माइंड करिए सबसे पहले वो चाहते हैं, उनका काम बेसिकली वो टीचिंग करना है, पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी समस्या को समझें और उसको क्या प्रोग्रेस किया जा सकता है, उसके बच्चे की समस्या है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग उस लाइफ से गुजर चुके होते हैं, हमें पता रहता है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। हम लोग को यदि बताया गया रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक्सपीरियंस तो खुद रहता ही है। हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेंगे, उनको सही राह पे लाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा एनईपी के अलग चलूंगा मैं, जो स्पेशली जो प्रेशर देता है कि लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो डू करके तब सीखेंगे, नहीं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे हमें समझाना है, बिफोर डूइंग वी हैव टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। हम लोग को अपने एक्सपीरियंस को बताना है ताकि वो गलती को ना करें, जो कुछ भी हो वो गलत ना करें और उनके जो भी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जा पाए। ये चीज हम लोग को बताएंगे। अब मैं पीछे आता हूँ, क्योंकि जरूरी है वन वे कम्युनिकेशन, मजा नहीं आएगा, टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस सेशन, तो जरूरी है कि सभी लोग इंगेज रहें। सर बीइंग अ प्रिंसिपल, व्हाट विल बी योर ड्यूटी? Is, as we all know, adolescent. It is a fancy word for teenagers. Fancy word. Nice. Fancy word. And in this process, from childhood to adulthood, there are different kinds of changes. Right now, we are talking on this area. So it is very difficult. It is very hard for the parents to understand, as well as for the teachers to understand their minds. So we should be more frank, not only with our students, with our child also. So give them time, so talk to them, and we should try to understand their mind. And according to that, we take some. We should guide them from negative to positive. Nice. You are very good. क्या ओके, लिमिटेड माइंड को कैसे हम लोग पॉजिटिव पे करता है? देखिए, इसमें तो टीचर की भूमिका रहती है, सबसे ज्यादा भूमिका परिवार की रहती है। और परिवार में जो बच्चे सीखते हैं वही बाहर में बिहेव भी करते हैं। आपके और हमारी ड्यूटी 4-5 घंटे की होती है, 20 घंटे परिवार में बच्चे रहते हैं। और आपने जब पढ़ा होगा इक्कीस के समाज की तमाम नीतियां अब मिट गई, मनुष्य की अतीत रीतियां दे रही चुनौतियां तुम्हें चुनौतियां, और उनको सुधारने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए अपने को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। नहीं तो जो बच्चे अपने परिवार में माँ पिता का इज्जत नहीं करते हैं, आपकी और हमारी क्या इज्जत करेंगे? यह देखते हुए परिवार सबसे पहले तो प्राथमिक पर्सन हमारा परिवार है। परिवार अगर अच्छा परिवार है, बच्चे अच्छे होंगे। बिगड़ा परिवार है, बच्चा बिगड़ा होगा।
आप और मैं जितना हम लाख प्रयास करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो बढ़े हुए हैं, नियम के अनुसार बढ़े हुए हैं, या सीबीएसई का जो रूल है उसके अंतर्गत बढ़े हुए हैं, हम लोग पूरा पूरा कर रहे हैं। पहले तो अपने को किसी को सुधार सकते, पहले अपने को सुधार हम टीचर हैं, और यह सब उम्र जो होती है यह माने लाइफ का गोल्डन टाइम होता है। जिस उम्र की बात आप कर रहे हैं यह लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, जो बच्चे अपने को हिमालय पहाड़ पर कर ले या बंगाल की खाड़ी में कर ले। Yes, sir. Thank you for this knowledge, information. गोल्ड की तरह सॉफ्ट Point about, sir, आप कुछ बताएंगे? गोल्ड की तरह सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट शाइनी और शाइनी। What is it? लोग साइंस Actually, आपके you can say. एक्सपीरियंस है ना, डोंट साइन दैट आई एम वेरी साइन ओनली फॉर साइन आउटसाइड in the inside How can you deviate your mind from negative to positive? Yes. हेलो हाँ आपके यहाँ से चार आदमी है आज नेगेटिव एक्टिविटी डन बाय द जी 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 ठीक 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 Actually, Yes, the sir. first period is the mind-deviated period. It is और the पीछे बैठ के बात करिए। which are belong to the same group. Which are not never mind what you judge and हाँ, हाँ, what correct. he did as he and she works. First of all, हमको करना क्या होगा ये चीज देख लेना है कि जब तक हमें ये पता ना हो कि किस प्रकार के ये ना पीरियड ठीक ठीक तो being a parents तो अगर माता पिता हैं तो हम इस चीज को देखें क्योंकि हमने इस पीरियड को 3 ग्रुप में बांटा है, ठीक है ना। अर्ली जो पीरियड था हमारा आपने कहा कि 10 to 13, एक्चुअली 10 to 13 इस एज में है, लेकिन ये 11 से था, लेकिन ये रिड्यूस हो गया क्योंकि हमारे हैबिट्स जो है फूड हैबिट है जिसमें यूरिया का परसेंटेज इतना हाई हो गया, यूरिया आप किसी को पिला दीजिए उसका जो एडोलेसेंस है उस पीरियड घट जाता है, वो चला जाता है। ये जो टाइम देख लीजिए आज से 10 साल बाद इस चीज को नोट कर लीजिए, जो एडोलेसेंस पीरियड है वो 11 से 10 से घटकर 9 तक आ जाएगा, क्योंकि हर 10 साल पर ये घटते जाता है एडोलेसेंस पीरियड। आप इस चीज को नोट करें क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे वो 13 से पढ़े हुए थे, सभी लोग पढ़े हुए, हो सकता है कि सब लोग पढ़े होंगे वो 14 से पढ़े होंगे, लेकिन 10 साल बाद ये रिड्यूसिबल है, ये नीचे आएगा क्योंकि यूरिया का परसेंटेज जैसे जैसे हमारे फूड में जाएगा, डीएपी का, पोटाश का जितना भी जाएगा एकदम कम आते जाएगा। तो हमें पहले सभी लोग जानते हैं कि इस पीरियड से हमको पास आउट हो चुके हैं, हम ये जानते हैं कि किस एज में आएंगे तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें क्या बताया जाए, तो हमें तो पहले पता कर, हम तो जानते हैं कि वो 11th में आएगा, आपका 11th जब वो रीच करेगा या 10th पर आएगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, आप ऑलरेडी उसे डिस्कस करिए शॉर्ट टाइम में। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा डोज दे दीजिए, पूरा डोज दे दीजिएगा तो आपको ऐसे ही डोज से बाहर कर देगा क्योंकि उसके पास ओवरडोज है। बीइंग ए डॉक्टर जब आप जाइएगा, जब ज्यादा कोई बीमारी है तो आपको हाई वोल्टेज की दवा नहीं देता है, वो स्लो पावर में दिया जाता है कि स्लो धीरे धीरे वो जाकर अपना पहले जगह बना ले, फिर हम हाई डोज करके उसको डाउन कर दें। तो पेरेंट्स के तरफ से, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो इस चीज़ को मानते हैं कि जिस टाइम में उसके साथ ऐसा चेंज आ रहा है तो उसको स्लोली इस चीज़ को बताएंगे कि देखो बाबू तुम्हारे आने वाला समय तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इस चीज़ को तुम कैसे रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस करने के लिए उससे हमारे पेरेंट्स के साथ बात करके हमें उस चीज़ को पहले से अवगत कराना होगा कि आगे जाएंगे तो खाइए, तो गिर जाएंगे तो वहाँ जाओ खाइए, लेकिन पहले रुक कर देख लेना फिर पार कर जाना। हम जब एडोलेसेंस पीरियड में थे तो हमारे पिताजी एक गाना गाते थे हमेशा, हम इस चीज को कभी नोटिस नहीं किए और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या रहे थे। बहुत पुराना फिल्म का गाना है, तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना। हो जाए पहले बात हमारा खत्म कर, हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कहना क्या चाह रहे थे, वो समझाना चाह रहे थे। बाद में जब हम ये टीएज को क्रॉस कर गए, पिताजी सब बात करने के फ्रेंड टू फ्रेंड बात करने के लिए जब हम पहुंचे तो हम इससे बोले कि देखो बेटा
जिस एज में थे तो हमारे साथ तुम कम बैठते थे क्योंकि डर के मारे तुम बैठ नहीं सकते, डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते थे। तो हमारा समाज करता क्या है, या तो कविता के माध्यम से, या शायर के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से, या किसी फ्रेंड के माध्यम से हम तुम्हें ये इंडिकेट करना चाहते थे कि तुम इस चीज को फ्रेंडशिप भी बनाते हो, चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, तो इस चीज को रिड्यूस करो अपने आप को कि किसके साथ हमें फ्रेंडशिप होना है, किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं होना, हम ये इंडिकेट कर रहे थे। बाद में हमें इस चीज को पता चला, बहुत अच्छा लगा। एक चीज और कहे थे कि 4 चीज मत छुपता ही नहीं है। हम अक्सर लोग सोचते हैं कि हम इसे छुपा लेंगे, हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, बाकी सब लोग देखता है, केवल हमको नहीं देखता है। दाद, खाद, खुजली, ठीक है, और प्यार। आप लाख छुपा लीजिए, नहीं छुपेगा, केवल आपको नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल ये बात सही था। तो एज ए फ्रेंड आप हर चीज को शेयर करें। और एक चीज हम और कहेंगे, जैसे हम ये चीज को यूटिलाइज करते हैं कि अपने घर में अगर कोई आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि एडोलसेंस पर आने के बाद हमारी चीजें उधर की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स हमसे आएगा। जैसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग 9वीं क्लास में, सभी लोग 9वीं क्लास में, एक फ्रेंड्स मेरा गया और घर से कुछ देख कर आया, वो हमारे बीच में शेयर करेगा तो हमारा इंटरेक्शन जो होगा उसके तरफ जाएगा, क्योंकि हम उसको नहीं जानते। एवरीथिंग कलरफुल जो चीज होता है हमारे यहाँ उसको चीज को बहुत देखता है। और जो साउंड, जो श्रिंकल्स आते हैं, जो कम, देखिए हम सभी लोग बैठे हुए हैं, अगर जो कम सुनता होगा ना, हल्का भी साउंड सुनाई देगा तो उधर की ओर कान चल जाएगा, बाकी ज्यादा सुनाई देगा नहीं सुनेगा। तो वैसे ही जो चीजें हमारे पास नहीं होती है तो हम उसकी बात की ओर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम अपने फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जो चीज कहेगा उस चीज को हम अडॉप्ट करते जाते हैं, पेरेंट्स के साइड से जो चीज मिलता है उसको अवॉइड करते जाते हैं। तो आप तो इस चीज को जानते हैं कि बच्चे हम जो कह रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये एडोलसेंस पीरियड में है, तो उसको शॉर्ट टर्म में इस चीज को बताइए। जब तक नहीं बताइएगा वो इस चीज को रिड्यूस नहीं करेगा। और इसको करने के लिए आप अपने परिवार से, मैंने एज ए उसको फ्रेंड ट्रीट करिए। मम्मी को भी बताइए कि आप, क्योंकि आप हो सकता है कि आप गर्ल्स जो है अपनी बच्ची जो है उसके साथ आप फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो मम्मी को बताइए ताकि वो इस चीज को वॉच करे। और आज का जो डेविएशन है मोबाइल के प्रति, तो एक ही है जीमेल, जिसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और भी एक डिवाइस में आता है टर्म्स, आप यूज कर लें तो क्या गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। जैसे आप यहाँ पर हैं, हम फोटो खींच रहे हैं आपका, हमारे घर पता चल गया कि हम आपका फोटो खींचे हैं। हम यहाँ पर हैं, वो घर पे पता चल गया कि आप यहाँ पर हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये आप एक मूवी आई हुई थी 26 स्पेशल 26, वो बहुत स्पेशल चीज उसमें बताया था कि अपने बच्ची को गाइड करने के लिए, क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि हम तुमको मोबाइल नहीं दे सकते, तुम ये मत करो। और हर कोई छिपा, हम ही प्यार करते हैं तो गार्डियन छिपाते हैं कि हम नहीं करते हैं। उनको पता है, क्योंकि हमने वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, केवल हमको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। पहला चीज सभी लोग ध्यान में रखिए, अगर बच्चे हमारे अकेले रहना चालू कर दें तो वो लॉ में फॉल हो गए। ये सभी लोग ध्यान में रखिए। अगर बच्चे अपने आप को अकेला मोबाइल के सहारे अगर चला गया तो समझ लीजिए वो फॉल कर गया, उसको रिकवर करेंगे। उसको अकेला छोड़िए ही नहीं, अपने साथ रखिए, अब उससे बात करिए। हो सकता है पढ़ाई की बात हो सकता है फैमिलियर बात हो सकता है फ्रेंडशिप की बात हो सकता है टूरिज्म की बात हो, उसको एक्स्ट्रा हटाइए, क्योंकि किताब का बोझ डालिएगा तो आपसे नहीं बात करेगा। तो ये मेरा मानना है। Most precious information. Of course, we have to give the information to our adolescents, to our child, to our students smoothly in one by one, not in a package way. एक साथ पूरी तरह से जानकारी नहीं देनी चाहिए, जैसा कि सर ने बताया। बहुत बढ़िया आइडिया रहा सर। सर आपने 2 आइडिया बताया कि मोबाइल के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, वो जीमेल टू जीमेल कांटेक्ट होता है। हाँ, जिस मोबाइल में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस मोबाइल में भी आपका जीमेल होना चाहिए और आपके पास भी वो जीमेल एक्टिवेट होना चाहिए। इस माध्यम से आप हर गतिविधि को बच्चे के करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मोबाइल सबसे पहली बात तो एडोलसेंस एज में है और अभी कंप्यूटर वाला समय है, नेट का समय है, एक दूसरे के लिए मोबाइल तो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो पहला तो कोशिश ये होना चाहिए कि भाई मोबाइल से उनको दूर रखें। आज के दौर में तो सीधे सी खुद ही उसको मोबाइल थमा दिया। हाँ, आप दूर नहीं कर सकते।
हाँ ऑफ कोर्स ऑनलाइन एजुकेशन जो भी है सिस्टम आप उसमें आप बना दीजिए, जो भी हो रहा है एक्टिविटी जितने भी किए जा रहे हैं वो सारा का सारा पता चल जाएगा। क्रोम में भी आता है, हिस्ट्री में आप उसको देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा भाई क्या क्या है। यदि बच्चे चालाक होंगे तो वो हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं। हाँ तो हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं और हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं। बढ़िया है, फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जहाँ हो सकता है वहाँ दीजिए, जहाँ हो सकता है वहाँ नहीं दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैरेंटल कंट्रोल आता है। अच्छा पैरेंटल कंट्रोल से हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके थ्रू को अलाउ कर सकते हैं, कौन सा साइट ओपन कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा विंडोज 11 से शुरू है, 10 से शुरू है ये न्यू वर्जन। थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। This is very very important. एडोलेसेंस एज में उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है, वो धीरे धीरे आइकॉन बनाना शुरू कर देते हैं। उनका यदि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसको अपना आइडियल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि सोशल चेंजिंग भी होता है, मेंटल चेंजिंग के साथ साथ उनका सोशल चेंजिंग भी होता है एडोलेसेंस में, जो उनको अलग तरह से डेविएट करता है। अब सोशल चेंजिंग किस तरह से हो सकता है, कोई बताएंगे हमको? यस मैम। कैसे फ्रेंड्स बना रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे कितने लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, आसपास हम फैमिली में कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। यस सर। अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बनाना, दूरी थोड़ा बनाना, ये शुरू हो जाता है। न्यू ग्रुप में ज्वाइन करना, अपने एज के बच्चों के साथ उठना बैठना, ये आना। क्योंकि वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ना कि व्हाट आर दे आर गोइंग टू डू मे बी इररिलेवेंट फॉर देम। हो सकता है पापा मना कर दे, मम्मी मना कर दे, तो वो कंफर्ट महसूस करते हैं अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ, अपने एज ग्रुप के फ्रेंड के साथ। सर वुड यू पुट योर व्यूज? हम डिस्कस कर ही दिए कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलता है उसकी तरफ वो फॉरवर्डेड हो जाते हैं। यहाँ पर आपने आइडियोलॉजी की बात की, जैसे मेरा इंटरेस्ट आप में है तो हम आपके बारे में जानना चालू करेंगे, आपके एक्शंस को अडॉप्ट करना चालू करेंगे। जैसे बच्चे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे बच्चे, तो जिस समय क्रिकेट के पीरियड से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सन होता है उसको हम अपने आइडल मान लेते हैं और उसके जो रास्ता है उसको फॉलो करने लगते हैं। सेम ये हर बच्चे के साथ होता है, चाहे वो आपका एजुकेशन फील्ड से हो या आपके सोशल कोई भी फील्ड हो, चाहे मूवी से कोई एक्ट्रेस हो या एक्टर्स हो, हर बच्चा जो होता है अपने आइडियोलॉजी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता है। थैंक यू सर। बिल्कुल उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता है और उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है अपने लाइफ में। सचिन मास्टर ब्लास्ट करेगा और बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उसी तरह से वो खेलना शुरू करेगा और दिखेगा कि थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी वो झलक हो। तो दिस इज कॉल्ड सोशल चेंजिंग। क्या बोलेंगे इसको? सोशल चेंजिंग बोलेंगे। अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। यंग पीपल आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अनएक्टेड रिसोर्स। एडोलेसेंस कैन बी की ड्राइविंग फोर्स इन बिल्डिंग अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल। बिल्कुल हमने शुरू में इस चीज की चर्चा कर दिया कि एडोलेसेंस जो होते हैं हमारे फ्यूचर की डिग्निटी होते हैं, हमारे कंट्री की डिग्निटी होते हैं। अभी जो कुछ जिसका हम लोग निर्माण कर जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिस मैनेजमेंट को हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कल होकर के इस मैनेजमेंट को संभालेंगे। क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं बच्चों में से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है और देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। तो वो एडोलेसेंस एज में अपने को फोकस कर लिया, अपने टारगेट बना लिया और उस टारगेट बनाने में, उसको फोकस करने में सबसे ज्यादा मदद हम लोग कर सकते हैं। ये दिस इज द सर्वे ऑफ 2010। ये पूरा दिया हुआ है चाइना से लेकर के आपको जापान तक। एडोलेसेंस का परसेंटेज, कितने परसेंटेज एडोलेसेंस है? बिल्कुल देश की
युवा शक्ति पर ही बागडोर पूरी संभली रहती है। यस चाइना का डाटा कभी भी फिक्स नहीं होता, बाकी सारे सब ठीक है। उनका सेक्स रेशियो कभी भी आपको फुटअप नहीं सही से देगा सही इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसीलिए चाइना को इसमें एक्चुअली दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में स्वाभाविक है, जब भी चाइना की बात होती है तो उसके ड्यूरेबल की बात नहीं हो सकती है, उसके गारंटी की बात नहीं हो सकती कि भाई ये एक्यूरेट है, करेक्ट है या नहीं है। चलिए बिल्कुल सही सर। साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल ग्रोथ, एवरीथिंग हैपनिंग ऑल एट वंस, ये सारे के सारे बदलाव हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजिंग, इट मीन दैट इमोशनल चेंजिंग, सोशल मैच्योरेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। सोशल मैच्योरेशन कोई बताएगा आपको? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है कि वो जिस चीज को आइकन बनाते हैं, जिस चीज को आइडियोलॉजी बनाते हैं, उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वो ग्रुप्स बनाते हैं, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ उठना बैठना और अपने आइडिया को शेयर करना, ये उनकी प्राथमिकता हो जाती है। अपने बिल्कुल सर ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ना कि भाई हम जो कुछ भी बताएंगे हो सकता है उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स है। सेकंड नंबर है एजुकेशनल डेवलपमेंट। हाउ कैन वी से दैट इट इज अ फेज इन व्हिच एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफर्स? कैसे कर सकते हैं सर? आप बताइए। एजुकेशनल डेवलपमेंट तो इसी एज में एजुकेशन जो होता है स्टार्ट होता है, और स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो जाता है, बट जो मिड होता है जहाँ से निर्माण होता है उनके लाइफ का, वो एक इनिशियल स्टेज यहीं से उनका होता है, जहाँ से अब इसी एज में उनका लाइफ कहाँ पे उनको किस मोड में ले जाएगी, कहाँ पे वो लाइफ में क्या गेन करेगा, बिल्कुल बढ़िया। यस यस सर प्लीज। एजुकेशनल डेवलपमेंट मीन्स हो गया कि अगर बच्चों के बीच में आप अगर एजुकेशनल चिल्ड्रन हैं तो उनके बीच में कंपटीशन भी चलता, हम सबसे बेस्ट ठीक है, हमारा नंबर सबसे अच्छा हो, और उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा हो जाता है कि वो हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट शो करने के तरीके दे रहे हैं, ताकि हर कोई उन्हें एक अच्छा अटेंशन दे, और चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो या उनका अपना जो लिविंग लाइफ हो, तो उसमें वो सबसे बेस्ट मतलब एज लाइक अ हीरो वो कि बाकी से वो सम्मानित हो। So that is जैसा कि पहले ही बताया कि सभासद को आंधी तूफान का अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही दिशा में काम करे, निजी सफलता तो वही सकारात्मक ऊर्जा को एजुकेशन क्षेत्र में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से बस शिक्षा में बिल्कुल एजुकेशनल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब उनके जो भी एनर्जीज हैं उनको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएंगे, और तब जाकर के, बिकॉज जनरली आप लोग सुनते होंगे कि 7 to 12 तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं 7 to 12 तक के सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो एज है वो एडोलेसेंस का एज है। इस दौरान वो गोल सेट करना, ऑफ कोर्स जनरली अक्सर हम लोग से पूछ दिया करते थे, सर व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, कुछ पता नहीं, सॉरी सर आई डोंट नो, वहां पे आंसर पूछते थे। इवन टुडे आप अपने क्लास के बच्चों से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट डायरेक्शन देना है, उन्हें बताना है कि व्हाट एवर देयर इंटरेस्ट आर, वी हैव टू पुट देयर एनर्जी टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स देम, उसके तरफ हम लोग उनकी एनर्जी को क्या करेंगे, पुट करेंगे। दिस इज द एजुकेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज इस एज में यदि वो अपने आप को संभाल लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाएंगे। मैं बार बार इस चीज की चर्चा कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव तो आप समझते ही हो रहे होंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए एक बेहतर लाइफ का निर्माण कर सकते हैं, और वो लाइफ केवल उनके लिए नहीं होगा, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे स्टेट के लिए, इवन पूरी कंट्री के लिए होगा।
जब पता चलता है कि अपने एरिया से बिहार, जब एवरी ईयर यूपीएससी का रिजल्ट जब आता है और उसमें देखा है कि भाई बिहारी कितने, पता चलता है कि बिहारी 1 to 10 तक आए हैं, 1 to 20 तक आए हैं, बड़ा प्राउड फील। क्या वो बिहारी जो है केवल उसी को डिनोट कर रहा है जिस विलेज से वो बिलोंग करता है? नहीं, पूरे बिहार को डिनोट करता है। कंट्री लेवल की बात आती है, जब बेहतर करता है, अरे यू बिलोंग टू इंडिया, अरे इंडिया ऐसा होते ही है। मास्टर ब्लास्टर की जब बात होती है, विराट कोहली की बात होती है, सानिया नेहवाल की बात होती है, ये सब अपने क्षेत्र में बेस्ट किए और उन्होंने अपने आप को संभाला, उस एडोलसेंस एज को संभाला, और दैट्स व्हाई टुडे दे आर ऑन पीक, दे आर ऑन द स्टेज ऑफ पीक। सो एजुकेशनल डेवलपमेंट भी होता है उस दौरान, और उसको सही डायरेक्शन में लाने का काम ये हमारी, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, जो कुछ हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। एडोलसेंस इज अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल 3 टाइप्स को हमने बता दिया इस चीज को। नेक्स्ट वन इज एडोलसेंस इज अ पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, जिसको मैंने बताया कि दिस इज कॉल्ड द ब्रीच। मैंने बता दिया इस चीज को। तो जब इस चीज को पढ़े तो फिर अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। यहाँ पे फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, क्योंकि सोशल और इमोशनल की बात हो रही है, फिजिकल की भी चेंजिंग तो होते ही है, जिसके बारे में हमने बताया, चर्चा किया थोड़ा बहुत। 10 to 19 years old. According to WHO, adolescence age, any person between age 10 to 19, this age range falls within WHO definition of young people, which refers to individual between age to 10 to 24. आगे भी जा सकता है, जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा और इधर कम होता जाएगा। पहले 14 हुआ करता था, 14 हुआ करता था, अब 10 हो गया है, आने वाले समय में 9 है। इसलिए हमारा स्लाइड में दिया होगा 9 चलिए नेक्स्ट 9 to 19, किसी ने 9 भी बोला था और वो चीज हमारे सामने आ गई। 9 to 19 9 to 19 देखिए यहाँ पे the period from about age 9 to 19 during which a child gradually changes into an adult। adult में आते हैं। पुबर्टी के बारे में भी मैंने चर्चा किया ही था कि where they are able to produce reproduction, they are able to participate in reproduction। यहाँ देखिए, don't call me a teenager, from now on I want to be referred to as a pre-adult। पुबर्टी जिसको हम बोलते हैं 16 to 19, वहां पे वो लोग टीनेजर सुनना पसंद नहीं करते, वो उसको क्या बोलते हैं? प्री अडल्ट, यानी अडल्ट होने के पहले की जो अवस्था है उस अवस्था में हम लोग। This is the physical changing. This happens during the adolescence age. Boys and girls, you all know this thing? The reproductive system matures, adult features appear, and height and muscles mass increase. Generally 11 to 18 की बात होती है and 12 to 18 की बात होती है। गर्ल्स और बॉयज जिनकी हाइट की बात होती है ना, धीरे धीरे क्रैम्प्स आने लगते हैं। 11 जब बॉयज में, बॉयज के बॉडी में क्या होता है? क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडोलसेंस। ये फिजिकल चेंजिंग की बात हो रही है जो खास करके बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में देखा जा सकता है। माइंड भी डेवलप होता है उनका, मैच्योरिटी उनके अंदर आती है। हालांकि वो सही है गलत तो डिसीजन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ सोचते जरूर है व्हाट इज राइट। तो ये जब भी होता है तो एडोलसेंस का ये इफेक्ट है। Puberty begins from you reach adolescence and ends during mid-adolescence 9 to 16 years of age। Puberty जिसको हम लोग बोलते हैं,
जिसको हम लोग तरुण अवस्था बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं। Second number, this is a period of time in person's life when they become sexually matured and able to reproduce, जिसकी मैंने चर्चा थोड़ी देर पहले की कि ये ऐसा टाइमिंग है जिसके दौरान they are able to participate in reproduction system, reproductive activities. Puberty refers especially to the change that happen to your reproductive system. Of course. 4 number point, the pituitary gland in the brain signals changes in the ovaries for girls and testes in boys. These are the changing during puberty age. 5 number point, the ovaries begin to produce estrogen, and these are the hormones which helps in developing the parts of body during adolescence age. Reproductive maturity. The release of sex hormones causes girls to begin to ovulate and menstruate, and boys to begin to produce sperm. This activity happens in both boys and girls. We have to explain in our class deeply, not in a little way. बायोलॉजी के जो भी टीचर है, साइंस के जो भी टीचर है, उन्हें इस बात को बताने की आवश्यकता है कि ये जो चेंजिंग है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ एज, इसे बताने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। चाहे वो बॉयज में जो भी परिवर्तन हो रहे हो या गर्ल्स में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चेंजिंग हो रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चेंजिंग, साउंड। अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। When they enter in the age of adolescence, their sound is completely different from their childhood age. बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग हो जाता है। इन बॉयज ओनली, उसके अलावा जो बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है, in boys only shoulders, burden and hair appears on face and chest. This happens, these are the changing. Next one, in both girls and boys, voice depends, देखिए दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन होता है। voice depends, muscles strength increase, body hair appears, skin release more oils, precipitations increases. आप देखते होंगे एडोलेसेंस एज में चेहरे पे बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। These are the changing, these are the quality of adolescence. Next is girls, only breast develop, hips widen, and body fat increases. These are the quality of adolescence age. It is very very important, and it should be discussed among our students also, that they should not be puzzled because it is a part of adolescence, it is a part of life, or they, so that they could take it easy. नहीं तो अक्सर घबरा जाते हैं। Height and muscles mass. Rapid growth creates aches and cramps, and at a time you feel awkward and clumsy. बिल्कुल वो जो बदलाव आता है बच्चों के अंदर, जनरली वो क्या करते हैं, क्रैम्प्स जब आता है बॉडी में, ऑलवेज देयर इज अ पेन इन देयर बॉडी, वो नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इट इज, दे आर इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइंस, एंड इट विल बी प्रोवाइडेड बाय यू, मी एंड योर पेरेंट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज boys start their growth, support later, and they grow for a longer period of time. कहा जाता है ना कि 18 तक जो भी हाइट बढ़नी है वो 18 तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती. 90% कंप्लीट हो जाता है.
90% कंप्लीट हो जाता है, बस 10% होता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है एंड देन वो भी स्टॉप हो जाता है। इट मीन दैट फुल्ली बॉडी मैच्योरेशन जो भी होता है इस एज के दौरान होता है। नेक्स्ट क्या आवश्यकता होती है, आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, we should give him suggestion or suggestion that they should take a proper nutrients diet। क्योंकि ये जो बॉडी बन जाता है ना 11 to 19 तक, 10 to 19 तक, ये फॉर होल लाइफ वो पिलर होता है। हाँ, जब तक न्यू जब स्ट्रॉन्ग रहेगा पिलर तो स्वाभाविक उस पर बड़े से बिल्डिंग बनाएगा, और न्यू जब वीक रहेगा तो बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं। Around the time that puberty starts, the pituitary gland also increases production of growth hormone। कई तरह के ग्रोथ होते हैं जिसको देखा जा सकता है। चलिए, these are the physical changes in girls as well as physical changes in boys। Growth support occurs, breast develop in girls, hips widen, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। These are the because we are today here present to participate in this session, especially on adolescence, तो इसके बारे में जानकारी ज़्यादा जरूरी नहीं। These are the physical changes। Next, waistline narrows and external genital enlarged in girls, uterus and ovaries enlarged in girls, ovulation occurs and menstruation begins in girls। These are the changing happen during the adolescence by especially in girls। And next one is boys physical change। You can see here facial hair, underarm, chest and pubic hair appears in boys। Nocturnal emissions in boys, penis and testes enlarge in boys, sperm production brings in boys, ejaculation occurs in boys, larynx voice जिसको हम बोलते हैं बॉयज में पतलापन या जो मोटापन जो आता है बॉयज में, enlarged voice deepens in boys, especially this happens in boys before the starting of mental changing। थोड़ा सा वार्म अप एक्टिविटी क्योंकि देख रहे हैं there are lots of who are not interested। So right now next one warm up activity is that हिंदी में गिनती तो सबको आती होगी और इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं है। कंडीशन ये है पहले 1 बोलना है, देन अगले पर्सन को बोलना है 2, नॉट 2। यदि सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो हम लोग ही डिसाइड करेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होगा। सो ऑल आर रेडी? आर यू रेडी? ओके। और ये रैंडमली होगा, ये नहीं कि बस वहां से आया तो एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, नहीं, किसी से भी और डिजिट कोई भी हो सकता है, वहां से शुरू किया जा सकता है और गड़बड़ होने पर उसी समय कोई ना कोई एक्टिविटी होगा जो बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मेंटल चेंजिंग पे आते हैं। पहले एक्टिविटी हो जाए। मैम 2 से 2 आपको आगे का बोलना है। वो तो कंडीशन तो मैंने शुरुआत में बता दिया ना, करना तो है कुछ ना कुछ। 1 2 नहीं, कुछ अलग ही बोलूंगा। काउंटिंग बोलना था, 3 बोलना। हाँ, यस। व्हाट्स योर हॉबी? Singing also. Singing also. हाँ। मोनोटोनस हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो जरूरी है ना एक्टिविटी। यस
सबको अपना काम बंद कर देता। हेलो रूल इज माइक लगाते हैं हम ये कर रहे हैं। हाँ दीजिए ना। चलिए सुनाइए। एट लास्ट आज ओपन हाउस भी होगी बात। लास्ट में जो 1 आवर होगा उसमें एवरीवन विल बी गिवन चांस टू शेयर, टू थिंक, टू से whatever they know, whatever the quality you have, you can express at last. मेरा माइक का है? ओके। रेडी रेडी रेडी। कितना प्यार तुमको करते हैं हम। जॉब नहीं करेंगे। इसके बाद नहीं करेंगे। आपको 5 बोलना है। 5 से 5 5 6 7 आपका क्या एक्टिविटी आप जो भी चाहें कर सकते हैं। Say something about Virat Kohli. Usually Virat Kohli are Sir, it is your hidden quality. So don't hesitate to share it. विराट कोहली इंडिया का सबसे बेस्ट यानी सचिन तेंदुलकर के बाद में सबसे अच्छा हम उसको बैट्समैन मानते हैं, क्रिकेटर मानते हैं। उसके बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी तो कैप्टन नहीं है और उसके बारे में नेक्स्ट वन आपको बोलना है 10 बोलिए 10 आधी बात मैं बोलूं तो उसको आपको आप 25 ट्रिक पता चल गया फ्रॉम दिस साइड आपको 74 78 99 चल अवेयर हो चुके हैं सारे लोग किसी से अवेयर हैं शायद दैट्स व्हाई दे आर ready to say the words. What is the next one? आप बोलिए 25 कोई भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। ये बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। भजन से संबंधित भजन से संबंध सुनाइए ना। भजन सुनाते हैं। होली है। कोई बात नहीं है होली है होली है। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं अगर थोड़ी सी अगर मिस्टेक हुई है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए और सजा तो अच्छी बात है कि अगर कोई आदमी से कोई गलती होती है तो उसको उसकी पनिशमेंट दी जानी चाहिए क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। मैं एक थोड़ी सी 2 लाइन की भजन है उसको मैं कोशिश करता हूँ। हिंदी मेरा माइंड से संबंधित है।
जब सबरी जो है, सबरी के बारे में है कि भगवान राम की जो है से वो इंतजार में है और भगवान राम की कितनी वो कहने को मतलब एक भक्त है और उपासना करती है, तो उसी को लेकर के भजन है, थोड़ी सी एक लाइन 2 लाइन की, उसको हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सुनिए। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास के गोपरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास के झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत सर, पीछे से एक सर थे, ये कुछ अरे सर ने अपना दिल का बात कहा तो गुमुर भी दिए गया राम राम पढ़ते इसके बाद आपको नहीं सब कोई गा लेगा तो सब भी गाएंगे। पीछे से भी आगे से भी थोड़ा और बहुत अच्छा गाते हैं, सब भी गाएंगे। इतना अच्छा गाती है कि लोग सो जाते हैं। अच्छा वो तो है, We are proud on it. हम लोग आप पर बहुत प्राउड है। Everyone are saying that. देखे ना भागवत सर बहुत प्राउड है। लिसन टू केयरफुली। देखिए ये कमेंट है, कमेंट नहीं एक्सपीरियंस भी है। जब हम अपने घर में होते हैं, छोटे बच्चे के द्वारा किसी चीज का डिमांड किया जाता है, हम सभी को काम में बहुत व्यस्त होते हैं, सामने आने के समय भूल जाते हैं, जो डिमांड था लेकर नहीं आ, बच्चों के सामने अनेक प्रकार की व्यवस्था का वर्णन करते हैं, आज नहीं कल ला दें, फिर कल आते हैं, बहाने में हम लोग कह देते हैं आज नहीं कल ये ला देंगे वो ला देंगे, बच्चे खुश हो जाते हैं। आज पापा मेरे लिए ये चीज लाएंगे, बच्चे अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत उत्साह से इस चीज को वर्णन करते हैं, आज पापा मेरे लिए ये लाएंगे, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पापा फिर शाम को घर आते हैं और भूल जाते हैं। बच्चे को जब उनका डिमांड फुलफिल नहीं होता, बहुत मायूस होकर बैठ जाता है। इसी घटना पर एक्सपीरियंस किया हुआ मेरा खुद का है और खुद का लिखा हुआ भी। हम लोग बहाना बनाते हैं, बच्चे के तर्ज पर है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है, किसी की बेबसी पर, किसी की बेबसी पर, किसी की बेबसी पर मस्कराना
खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है, बना के रत्न गेन गेन घरों से गोथ के तारे, बना के रत्न गेन गेन घरों से गोथ के तारे, उसे अपने ही हाथों से बहाना खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है। और भी किसी की आस का विश्वास का धोखा, और भी किसी की आस का विश्वास का धोखा, बुझा दे दीप मन का तो लगाना खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है। किसी की बेबसी पर मुस्कुराना खूब आता है, बना के रत्न के अनगिन घरों से गोथ के तारे, उसे अपने ही हाथों से बहाना खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है। देखिए इस चीज को, अरे किसी वीरान भोले से हृदय के देवता बनके, किसी वीरान भोले से हृदय के देवता बनके, उन्हें तन्हाइया देके रुलाना खूब आता है, मुझे मालूम है तुमको बहाना खूब आता है। किसी की बेबसी पर मुस्कुराना खूब आता है। बच्चों के डिमांड आप भूल जाते हैं, लेकिन वाइफ के डिमांड को नहीं भूलते। ये एक्सपीरियंस है, सर का एक्सपीरियंस है। सर का एक्सपीरियंस इसलिए कि अगर वो भूल जाएंगे तो फिर बेट माफ हो जाएगी। सर का एक्सपीरियंस है। वाइफ को कैसे बोलेंगे? वाइफ के माध्यम से ही वो बच्चा आया। अच्छा, तो पहले डिमांड तो उसका पूरा क्या बच्चा। ऐसा कोई जरूरी कि जो भी माध्यम हो बीवी होगी तो बीवी है। सर एक छोटा सा और है, एक घटना है जर्नी के पीरियड का, अप्रैल 2007 हम एक जर्नी में जा रहे थे, बस में बैठे हुए थे। बस में खिड़की के तरफ से हम देख रहे थे, बारात विदा हुआ था और इतनी सारी गाड़ियां थी जिसकी वजह से बस वाला रुक गया था साइड में। दुल्हा की गाड़ी दुल्हन को लेकर आगे बढ़ रही थी, बस की तरफ से कर्व मार कर स्ट्रेट हुआ बहुत फास्ट, तब तक ट्रक आया और लड़ गया। इतना जबरदस्त टक्कर हुआ कि हम सब लोग निकलकर भागे, देखे तब तक दूल्हा एक्सपायर हो गया। देखकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस दुल्हन की करुण दास्तान को देखकर रो न दे। सभी लोग रोए, इवन मैं भी। इस चीज को हमने शब्दों में पिरो दिया। आप लोग रोइएगा नहीं? पानी बगल में ही है, आंसू पोंछने। मैं कितनी अभागन हूँ कि दुनिया मेरी लौट गई। मैं कितनी अभागन हूँ कि दुनिया मेरी लौट गई।
अभी हाथ की मेहंदी सुखी न थी, तब तक मांग के सिंदूर मीट गए। मैं कितनी अभागन हूँ कि दुनिया मेरी लूट गए। एक बाबुल का घर अपना था, वो भी घर अब हमें मिला नहीं। बाबुल के घर को छोड़ के साजन के घर को चल पड़े। कुछ ही दूर था घर साजन का कि दुनिया मेरी लौट गई। मैं कितनी अभागन हूँ कि दुनिया मेरी लौट गई। अभी हाथ की मेहंदी सुखी न थी, तब तक मांग के सिंदूर मीत गई। अब आगे नहीं सुना पाएंगे हम खुद ही। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे फिर हम सेशन की तरफ। दिस वाज जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। देख रहा था कि सारे लोग झुक रहे हैं, नींद आ रही है किसी को, तो थोड़ा बहुत तो जरूरी है। हालांकि लास्ट में 1 आवर 1.5 आवर हम जरूर मौका देंगे सबको अपने बातों को कहने का, अपने कला को दिखाने का, आर्ट को दिखाने का। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। मेंटल चेंजिंग, हार्मोन्स कंट्रोल मस्ट ऑफ द आउटवर्ड फिजिकल चेंजिंग ऑफ द एडोलेसेंस। ये सबसे ज्यादा है हार्मोन कंट्रोल, बट चेंजिंग इन द वे यू थिंक and feel have more to do with changes occurring in our brain. Between the years of the 10 and 13, dramatic wave of growth and development take place. Dramatic wave of growth. It means that life काफी बदलना शुरू हो जाता है। पहले जो चाइल्डहुड में जो थिंकिंग करता था, कुछ अजीब सी दुनिया थी, लेकिन अब जो है उसके लाइफ में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। कई तरह की बातों को सोचना शुरू कर देता है, और वो केवल सोचता नहीं है, उसमें लॉजिक को एस्टैब्लिश करता है कि व्हाई दिस हैपेंड, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये लॉजिकल कैपेसिटी उसके अंदर आने लगती है एडोलेसेंस में, जिसको हम लोग मेंटल चेंज की तरह समझ सकते हैं। इंप्रूवमेंट मेंटल चेंजेस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एकदम सूक्ष्म बातों पर, यदि उसको आप डांट रहे हैं, क्लास में आज क्या हुआ उसके साथ, वो क्या करने लगता है, इसे उसको बताना शुरू कर देता है। These are the changing happened during adolescence age. उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग स्किल्स, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ने लगती है। वो हर चीजों को रीजन के हिसाब से देखता है, इंटरेस्ट होने लगता है, दुनिया की चीजों में उसको इंटरेस्ट होने लगता है, और हर चीज को वो लॉजिकली देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इंपल्स कंट्रोल, इंपल्सिव जिसको बोलते हैं, एक रैंडम डिसीजन ले लेना, उसको नहीं समझ में आता है तो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, रैंडम वो जवाब देता है, चाहे उससे बड़े हो या उससे छोटे। वो जवाब कई तरह का हो सकता है, वो फिजिकली वो एक्टिव होकर के दे, या ओरली वो बोल करके दे, मेंटली दे, जैसे भी हो, उसके एक्शन में इस चीज को देखा जा सकता है। Emotional changes. During adolescence, individuals start to define meaning in their life, a set of personal values and a sense of self. उसके अंदर सेल्फ, जैसे कि मैंने शुरुआत में देर पहले मैंने बताया, उसके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी की बात हो रही है। Who am I? वो अपने बारे में सोचता है। What is my existence? What is my duty? What should I do? What is wrong and what is right for me? What should I do? वो सोचना शुरू कर देता है। Second, search for meaning, choosing a way of life that is right for you. It means that ये क्वालिटी होती है उसके लिए, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, वो लाइफ को ढूंढना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में एज अ टीचर इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू पुट हिम, टू ब्रिंग हिम ऑन द राइट पाथ।
Next is search for values, establishing beliefs that are important to you. वो बिलीव भी करना शुरू कर देता है, जैसा कि मैंने बताया कि सोशल जो चेंजिंग होता है और वो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में वो बिलीव करना शुरू कर देता है, तभी तो अपनी बातों को शेयर करता है। वो कंफर्ट जोन की तलाश करना शुरू कर देता है और वो चीज उसको कहाँ मिलता है? उसके फ्रेंड्स सर्कल, उन लोगों के साथ हर बात को शेयर करना शुरू कर देता है। दिस इज मेंटल चेंजिंग। फोर्थ नंबर, सर्च फॉर सेल्फ। दिस इज द सर्च फॉर योर आइडेंटिटी, हेयर स्टाइल, क्लोथ्स, बिहेवियर्स, सीकिंग अप्रूवल फॉर फ्रॉम अदर्स। उसके बिहेवियर में तो चेंजिंग होते रहता है, उसका लाइफ स्टाइल में भी कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। किसी दूसरे के स्टाइल को फॉलो शुरू करना शुरू कर देता है। In the when I was in adolescence, मैं अजय देवगन को बहुत फॉलो करता था। Even today is my favorite। तो उसकी तरह बाल रखना और सुपर ऐसा हुआ कि बाल मुझे झड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना आइडेंटिटी खोजने के लिए आइकॉन बनाना शुरू कर देते हैं, आइडियल बनाना शुरू कर देते हैं और उनके एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एडोलसेंस एज में ये सारा का सारा होता है। नेक्स्ट, कंसर्न ऑफ एडोलसेंस, पर्सनल जजमेंट। खुद भी जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये भावना आ जाती है। चलिए इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम पूछें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल जजमेंट? वो किस टाइप से पर्सनल जजमेंट? सर आप according to adolescence, personal adjustment means जैसे कि वो जो कहता है ना, वो बोलता है कि यही मेरा राइट है, ठीक है। हम दूसरे की बात को वह नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है। वो बोलता है नहीं कि यही सही है और इसी को करो, ऐसा ही करो। यही किसी इसमें जो सोचता है, जो करता है, तो वह एक्चुअल दिखता है, नहीं दिखता है। हम जो सेंस करते हैं उसको नहीं मानता है, मतलब ये मेरी लाइफ नहीं है, जो कर रहा है वो उसके लिए बढ़िया है, मतलब वो खुद के मतलब रिजल्ट पे खुश रहता है, नहीं राइट फॉर मी। ऑफ कोर्स वो खुद का डिसीजन लेना शुरू कर देता है, वो खुद डिसीजन मेकर बनना शुरू हो जाता है, अपने बारे में सोचता है अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका रॉन्ग होता है। कभी कभी वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी चला जाता है और बैड स्टेप ले लेता है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप, हाउ दे एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप ड्यूरिंग एडोलसेंस। मैम could you answer? उनका जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, वो अपने आप को मतलब कि ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। जैसे कि अगर वो अपने फैमिली में पेरेंट्स से जो बात नहीं कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल पे ग्रुप से करेंगे, ठीक है। अगर फैमिली ने कुछ बोला तो वो उसको ना सोचते हैं कि नहीं, यही बात अगर सेम बात उनके ग्रुप ने कही उसको, तो वो उसको सही लगेगी। तो उनको लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है उनके उन दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा है, फिर वो उसी को सही है। बिल्कुल। सर हेलो दिखाएं, हाउ दे एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। इस एज में एक्चुअली जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो लोग उनके मन की बातों को करते हैं, जो उनके मन की बातों को समझते हैं या फिर जो उनके मन लायक बातों को बोलते हैं, वो वैसे ही कलीग्स, वैसे ही लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ में अपना रिलेशन बनाना नहीं चाहते। और जो उनके मन की बातों को नहीं करते या फिर जो उनसे निगेटिव बातों को करते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनसे वो दूर करते हैं। नाइस, गिव अ बिग हैंड फॉर सर। बिल्कुल, कंक्लूजन में कह सकते हैं कि दे जस्ट वांटेड इन सर्च ऑफ कॉपी व्हाट टू डू। वही बात जो उनके पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, और वही किसी फ्रेंड के द्वारा उनको बता दिया जा रहा है कि दिस इज द राइट वे थ्रू व्हिच यू शुड ट्राई, वो अच्छा लगता है। और वही माँ बाप बता रहे हैं अच्छा
चलिए नेक्स्ट जो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कई तरह का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बारे में कोई बता सकता है? स्ट्रेस ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है, ऐसे तो सारे लोग चाहते हैं कि हम सबसे बेस्ट दिखें। मेरा जो है वो सबसे हर चीज़ में बेस्ट हो, चाहे वाइज हो चाहे प्रोफेशन वाइज हो। लेकिन जो एडोलसेंस का टाइम है वो कहते हैं कि जितना हमारे ब्रेन का लर्निंग कैपेसिटी है उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है हमारे पूरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम में। तो उस टाइम वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम अपने ब्रेन को चलाने लगते हैं। क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखें, और ये अच्छे दिखने के चलते एडोलसेंस में बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं बच्चों को कि उनको क्या पहनना है। इस चीज़ की अगर हम अपने घर में भी देखते हैं तो वो सिर्फ एक ड्रेस पहनने के लिए लड़कियां उस एज में 10 कपड़े को रिजेक्ट करती हैं और उसमें उनको स्ट्रेस हो जाता है। लड़कों में भी क्या है, अगर एक्ने, पिंपल्स, ये सब की प्रॉब्लम, अगर क्योंकि एडोलसेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उन प्रॉब्लम की वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, उस छोटी सी चीज़ की वजह से वो डिप्रेस हो जा रहे हैं। फ्रेंड से लड़ाई हो गई, उनको स्ट्रेस हो गया, डिप्रेस हो गए। क्लास में टीचर अगर उनको अटेंशन ना देकर किसी दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा अटेंशन अगर किसी भी रीज़न से मिल जाए तो वो हमेशा ऐसा वो उनके अंदर चलता रहता है कि हमको कंपटीशन में है, हमको दूसरे से बेस्ट दिखना ही दिखना है। चाहे वो फैमिली में है, उनको हमेशा क्योंकि मूड स्विंग्स और हार्मोनल चेंजेस के कारण उनको कभी लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अगले ही पल लगता है कि नहीं करते हैं। उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो सही ढंग से जब नहीं ले पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में ये घर करने लगते हैं और स्ट्रेस उनको ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए कोई दवा की, थेरेपी की जरूरत नहीं है, बस बातचीत से, काउंसलिंग से आसानी से उसको ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेस लाइफ के लिए बहुत जरूरी भी है। हम लोग भी स्ट्रेस में होते हैं। मैं शुरुआत में आया तो देखा कि बहुत सारे लोग चेहरे पे दिख रहे थे स्ट्रेस, वो आज भी कोई किसी तरह इन द बिगनिंग। तो कभी कभी स्ट्रेस बेनिफिशियल भी होते हैं, कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। Get profit without risk, experience without danger, reward without work is as impossible as it is to live without being worried. Without stress, we cannot develop our life. Of course, of course. There are two types of stress. One is negative and other is positive. We have to take the positive stress to get all the blessings that we want. Do something outstanding with the difference. Nice. स्ट्रेस रियली में सर ने बोला कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं और दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव दोनों जरूरी है। तो एडोलसेंस में जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल चेंजिंग के कारण, जो मेंटल चेंजिंग के कारण जो स्ट्रेस होता है, जो उनके लिए जरूरी है, और बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इन दैट केस once again I will repeat that it's our responsibility to make him stress free, to bring him in the comfort zone, to console him, to tell him, to elaborate him about the existence of life, about the situation. So stress is also very very important. Juvenile delinquencies, it is most important thing and very very danger phase, danger activity, danger mental condition of adolescent age. सबको कही हमने के लिए और ये उनके लिए जो है ना
स्मोकिंग, मॉकटेल या मॉकटेल ड्रिंकिंग और जितने भी तरह के आज प्रॉब्लम अभी हमारे क्रिएट हो रहा है। सैम्पलिंग है या फिर जैसे भी बेवरेज मार्केट में खुलेआम बिक रहा है, जिनका सबसे ज़्यादा जो बैड इफेक्ट और सबसे ज़्यादा जो बैड जो हो रहा है टीचर्स के द्वारा हो रहा है, वो भी अपने सर्कल को मेंटेन करने के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि बोलो ना आने के लिए सबको। और अब हम इस काबिल बन चुके हैं कि अब हम सामाजिक रूप से अपने व्यक्तित्व को हम दिखा सकते हैं। सो दैट इज अंडर ड्रग्स एडिक्शन।